एवरीवन, दिस इज आरजे शैली फ्रॉम 94.3 माय एफएम एंड यू नो व्हाट, जब भी हम हमारे लाइफ के बेस्ट अचीवमेंट्स की बात करेंगे, एक अचीवमेंट की जिसकी बात हम जरूर करेंगे कि हमने हमारे सपनों का घर बनाया, राइट। जो हम चाहते हैं कि हमारे सपनों से भी ज्यादा ही खूबसूरत बन जाए, जो हमें डिफाइन करे, हमारी कंफर्ट को डिफाइन करे, हमारी स्टाइल को डिफाइन करे, राइट। इन शॉर्ट, पूरा का पूरा हमें ही डिफाइन कर दे। सो दिस कॉन्वर्सेशन इज जस्ट अबाउट दैट स्पेस ऑफ योर्स। वेलकम टू वरपुरा टाइल्स एंड बाथवेयर प्रेजेंट्स दी स्पेस एंड स्टाइल टॉक्स, and we have with us Bhadri Suthar from Grid Architect Research and Design Studio. Ma'am, welcome to you first of all. कैसी हैं आप? I'm good, thank you so much. It's lovely to be here. So ma'am, सबसे पहले ये कॉन्वर्जेशन की शुरुआत से करते हैं जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ग्रिड आर्किटेक्ट डिज़ाइन स्टूडियो की शुरुआत आपने कहाँ से की, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि जो आज भी आपके साथ है। So, what I love most about my journey is that every day is a new day. रोज़ एक नया दिन है, रोज़ नए challenges हैं. Every day is a new creative design that we are looking into. कुछ नया सोच रहे हैं, new research हो रहा है. So you know, every day is a new day for me. I'm like so enthusiastic and happy to go to work. And for me, it's not just a profession, it's my passion. And I look forward to it every single day. And I feel blessed कि I love what I'm doing. सो मैम, टेकिंग फॉरवर्ड, आपका इतना लंबा करियर स्पैन रहा है, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, इतनी सारी मेमोरीज होंगी। सो वन ऑफ योर फेवरेट एंड मोस्ट मेमोरेबल प्रोजेक्ट इफ आई आस्क, तो वो प्रोजेक्ट कौन सा है जो आज भी आपको याद आता है? See, every time we do a project लगता है ये हमारा बेबी है. So that is without fail. But there is a project which is definitely very dear, and also because it has taught us lot of life changing things that have happened in our life. Okay. We designing Daji's home. So Daji is the world heartfulness spiritual leader. Heartfulness is a path of meditation. और उनका घर, उनका होम डिज़ाइन करने का अपॉर्चुनिटी, मौका मिला हमें, एंड उनके साथ 2-3 साल रहने का. वैसे तो उनके साथ हैं हम, बट जब किसी का, when you're designing somebody's home, you're more connected to them, you're talking to them more often. और उनके फैमिली के लिए, सबके लिए घर डिज़ाइन करना, वो एक बहुत स्पेशल चीज़ थी. एंड वी लर्नड लाइफ्स बिगेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम हिम. सो मैम, पैशन और कंपैशन और इमोशन से इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा टेक्नोलॉजी के टर्म्स पर लेकर जाते हैं. सो टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, तो इंजीनियर्ड जो डिज़ाइन स्टोन्स होते हैं और जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं, तो वो डिफरेंस आपको कहाँ पे लगता है कि जिसके बारे में आप ऑडियंस के साथ बात कर सकती हैं? See, as technology evolved, and it is still evolving, the natural stone textures, which were difficult to get earlier because everything was very manual. Now things are much easier because, the cutting, the chiseling, the curves, all that is much easier, and we can have more innovative and transforming designs. It is very much possible because of technology. सो टॉकिंग अबाउट टाइल्स, बहुत शुरुआत के टाइम से आज तक टाइल्स का कॉन्सेप्ट लोग समझते हैं, बट आई वॉन्ट टू जस्ट नो कि आज के मॉडर्न होम डेकोर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टाइल्स की डेफिनेशन आज लोग क्या समझते हैं, कि क्या डिमांड करते हैं व्हेन इट कम्स टू टाइल्स के साथ घर को डिज़ाइन करना? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टाइल्स कैन versus natural stones, tiles can give you so many sizes, so many variations, so many textures, so many colors, and with so much urbanization, and we have so many vertical buildings and so much of construction going on, tiles are easier to handle and easier to even use. So that I think that is a very good thing that is happening. Also for a fact ki we are also conserving on the natural resources. But two things, one is that because of the natural stone mining that we've been doing, many mines are abandoned. So if we can, really take care of that, that would be very nice. And the manufacturing process of tiles, if that becomes a little more, what you call is environmentally conscious, and there would be less CO2 emissions, that would also be very nice. सो टॉकिंग अबाउट आपने जस्ट एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस की बात करी है, तो सस्टेनेबिलिटी इज़ द थिंग, राइट? सो सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इको फ्रेंडली डिज़ाइंस की हम बात करते हैं, तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के साथ उसका अलाइनमेंट कहाँ है कि जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए? See, for us, sustainability is not a checklist. True. It's a way of living.
है ना. So how we design buildings has a great social impact. It's also a great environmental responsibility. Right. So the more conscious we are when doing buildings, because we feel that when we design, it should have a lot of sense in it. I mean, things like empathy, compassion, smell, how we feel in that building, or how the building responds to us. True. Or how we respond to the building and the people who are using the building. So if the buildings can also nourish us, so how we design the building is very important. And the more biophilic we are in our designs, the biophilic elements that we use, and we connect it to nature, our buildings, then it really helps. सो टॉकिंग अबाउट सर्फेसिज लाइक टाइल्स एंड स्टोन्स, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के मॉडर्न होम डेकोर की जब हम बात करते हैं, वॉल क्लेडिंग, फर्नीचर की बात करते हैं, तो टाइल्स एंड स्टोन्स वहाँ पे कितना एग्जिस्ट करते हैं, या उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में आप लोगों को कुछ बताइए. See, surfaces are no longer limited to application only on flooring. True that. है ना. We are using it for furniture, for cladding, even in kitchens, everywhere we are using it. True. And the texture of the surface, the more natural it is, the more good you feel about it. क्योंकि हमें वाबी साबी क्यों पसंद है? बिकॉज हमें नेचुरल चीज़ें पसंद है. एज ह्यूमन बींग्स हम सबको नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद होती है, जो नेचर में मिलती है, जो इम्परफेक्ट है. नेचर के जो एलिमेंट्स है वो बहुत इम्परफेक्ट है, बहुत नेचुरल है, एकदम एग्जैक्ट फिनिशेज या एग्जैक्ट स्क्वायर या एग्जैक्ट गोल ऐसे नहीं है. सो वो तो नेचुरल फ्लो में सब जाता है, वो हमको अच्छा लगता है. तो वही हम जब अपने घर डिज़ाइन करते हैं, हम उसी को ढूंढते हैं. जैसे इंडियन घरों में जब हम बैरफुट चलते हैं, खुले पाँव, तो हमें जो ज़मीन पे पैर जब रखते हैं, जो फीलिंग आती है, वो जो कूलनेस आती है नेचुरल स्टोन से, या अभी जो हमारे टाइल्स मिलती है जो उसी फिनिश की होती है. सो दैट सेंस ऑफ स्मेल, ऑफ टच, ऑफ फील, वो जो है ना नेचुरल फीलिंग, वो हमें बहुत अच्छी लगती है और वो हमें कंटिन्यू करनी चाहिए. So ma'am, this conversation says it all, and thank you so much for sharing all of this. But before we end this conversation, I want कि जो आज अपना घर डिज़ाइन करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे myths और confusions होते हैं, तो उसको अगर आप क्लियर करना चाहें तो उनको एक मैसेज आप क्या देंगी? जब हम अपना घर डिज़ाइन करते हैं ना, तो हमें ये याद रखना है कि हम घर डिज़ाइन कर रहे हैं, रिसोर्ट नहीं. That says a lot. And the context is so important. Luxury comes with great responsibility. True. Sustainability is a way of living for Indians. सिखाने की ज़रूरत नहीं है हमें. हम तो हमारे कल्चर में, हमारे हेरिटेज में सस्टेनेबिलिटी है ही. यदि हम अपने पूर्वज, अपनी दादी नानी की बातें सुने या देखें, तो वो ऑलरेडी हम एम्बाइब कर ही रहे हैं. वेस्ट हमें बता रहा है सस्टेनेबिलिटी क्या है, पर हमें पता ही है इफ़ वी गो बैक टू आवर रूट्स. Thank you so much, ma'am. This conversation says it all. So this is Varmora Tiles and Bathware presents The Space and Style Talks. Thank you so much.